Assalamu alaikum. This is your host Abdullah Osman and you're watching People Behind People. This is basically a podcast जहाँ पे हम आजकल फिलहाल फर्स्टली एचआर प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और स्टूडेंट्स को अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेंगे। जैसे सीवी कैसे बनानी है, ठीक है, आजकल एचआर का जो प्रोफेशन है ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ रिमोट जॉब, फिर एआई किस तरह ये पूरा का पूरा कैरियर चेंज हो गया। आज का हमारा जो सबसे पहला गेस्ट है वो है हमाद रज़ा, जो कि एक रिमोट जॉब करते हैं और डॉलर्स बनाते हैं। हमाद रज़ा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you so much, Abdullah, for having me. It's a pleasure. It's my first podcast, and I think it might be the last one as well. And thank you so much for inviting me. Thank you so much for having me. मेरा नाम हमाद है. As you have introduced me, I did my bachelor's from Bahria University, Islamabad. I studied development studies, or during the start of my professional career. Even when I was in university, I had the opportunity to join the Ministry of Planning and Development Affairs. और जब मैं वहाँ पे एज रिसर्चर काम कर रहा था, तो उसी दौरान ही आई लैंडेड एन अपॉर्चुनिटी विद यूएस साइट. मुझे किसी दोस्त ने रेकमेंड किया, जैसे जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, देयर इज एन ओपनिंग देयर, they don't require much experience, just put your CV there, let's see how it works out. So that's what I did. I just went on the website, और मुझे नहीं पता था जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, मुझे नहीं पता था मेरी CV कैसी होनी चाहिए, and I just applied there. I was very lucky. I would say I landed that job, and that's where my career began with a US company that was remote first. ओके, सो आपने शायद जो है मोटिवेशन, मेरा बेसिकली पहला सवाल था कि आपने, क्योंकि एचआर के कैरियर में ज्यादातर खवातीन ही होती हैं, तो आपने अपनी इस जॉब का आगाज, एचआर प्रोफेशन का आगाज, क्योंकि तो शायद पहले क्वेश्चन का आंसर आपने इसी में दे दिया, तो आपने एज अ रिक्रूटर काम किया और आपने अपनी जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा हुआ है कि आप लीड ऑपरेशंस आई गेस हैं, तो आपकी किस तरह ये बेसिकली आपकी ट्रांजिशन हुई? I had a very fun journey. I did not start as a recruiter. I joined the firm as an agent. We were working on the market leading LLMs. LLM यानी कि आपका जो AI होता है, और जिस चैटबॉट के ऊपर हम काम कर रहे थे, आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट. आई कांट नेम इट, बट इट्स वन ऑफ दोज बॉट्स जो कि आप रोज यूज करते हो. आपको जब भी क्लास में कोई मसला आ रहा है, आप किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, टीचर को इम्प्रेस करना है, एग्जैक्टली आप उसी के ऊपर जाते हो और आप उसी से जवाब निकालते हो. दैट्स योर फर्स्ट चॉइस of AI. So we trained that bot, and I was lucky enough to be a part of the team जिसने उसका पहला जो फेज था, before even that bot was launched, we trained that bot. So after that, because that company was collaborating with our company, we were providing services to that company. I got a promotion because उनके product के launch के बाद they wanted to extend their relationship with us. That gave me the opportunity to work with them even further. और वहाँ से फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता जर्नी का आगाज हुआ. I was with the QA team, I was with the onboarding team, and then I was lucky enough कि एक opportunity आई. उसके अंदर our client was looking to extend the number of agents that was working for them, and they wanted to start a recruiting spree. मेरा इंटरेस्ट इन एचआर उससे बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका हुआ था. वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जिसको मैंने ग्रैब किया, लेकिन उससे पहले भी आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट एचआर. सो HR is a very difficult thing to understand. It's for me, HR is about people. So I had people skills, which was very visible to my team, and they thought that I would be the best fit for that recruiter role, and they got me on board for that. And that's where my journey for as a recruiter and as an HR actually started. आप जैसे कह रहे थे कि इस फील्ड में ज्यादातर खवातीन ही आती है, तो the other co-lead that I had with me was a female. So we worked together, and honestly, the reason that people prefer to have females as HR, and this is just my opinion, is that they are more open to speak up. They are good at conversation. Right now, I guess women are more confident than men, or boys.
हाँ, उनका उनकी इंटरेक्शन स्किल्स, उनकी बात करने की स्किल्स आजकल ज्यादा कॉन्फिडेंट है आजकल वो। कुछ जो है मामलात में हमसे काफी बेहतर है। हम्म। तो एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली स्पेसिफिक टू दिस डोमेन, एचआर डोमेन। खवातीन ओवरऑल बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर प्रोफेशन में दे आर लीडिंग। तो हम्म। लेकिन एचआर के अंदर एक स्पेसिफिक आई थिंक एक पीपल स्किल्स है जो कि अमूमन खवातीन में मर्दों के बिनिस्बत ज्यादा होती है, जिसके अंदर इवन अक्सर मर्द हेजिटेट भी करते हैं एचआर की तरफ जाने में कि इट्स मोर ऑफ अ फीमेल, डोमेन। हाँ इट्स मोर ऑफ फीमेल जॉब, एटलीस्ट ये पर्सोना हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दिया गया है। अच्छा सर, बेसिकली जो मेरा अब सवाल है वो ये है कि अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी गोरों की कंपनी होती है, ये ज़्यादातर आजकल इंडियंस को प्रेफर करती है। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको, जिस तरह आपने कहा कि मैं बिल्कुल, एक मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया, मैं वहाँ पे अप्लाई मैंने कर दिया, देन आप बिल्कुल एक रिक्रूटर बन गए, और फिर बाद में आपने जिस तरह बताया कि आपने प्रोग्रेस इतनी की, आप क्या समझते हैं कि आपकी हैबिट्स और आपके अंदर स्किल्स कौन सी ऐसी थी जो हमारे यंग स्टूडेंट्स को भी आजकल कर सकती हैं अच्छा, आई हेल्प विल आउट? डिवाइड द आंसर इन टू पार्ट्स, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी एक तरह से कि पहली बात ये हम्म। कि इंडियंस क्यों आ रहे हैं ज्यादा, हम्म। पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे। हम्म। इसका कोई एक जवाब देखिए, व्हेनेवर गोरा इज हायरिंग, they are when they are hiring outside of their country, they are actually looking for cheap labor। और इसका कोई सीधा जवाब नहीं, ये एक वाहिद जवाब है उसको, उनको एक अच्छी चीप लेबर चाहिए। हम्म। पाकिस्तान अच्छी चीप लेबर प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। बांग्लादेश भी करता है, नेपाल भी करता है, फिलीपींस भी करता है, इंडोनेशिया भी करता है, भूटान भी करता है। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चीप लेबर प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे फर्क जो आ जाता है हमारी और उनकी लेबर का, एटलीस्ट समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, के एंड आई वॉन्ट कॉमेंट ऑन इंडियन लेबर, आई विल कॉमेंट ऑन बांग्लादेशीज। Bangladeshis have the perfect work ethic. They are the most career driven individuals I have seen ever. वो हम्म। लोग जितनी मेहनत से काम करते हैं, आई डोंट थिंक आई हैव सीन पाकिस्तानी लेबर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। तो कुछ हमारी अपनी गलतियां, कुछ हमारी अपनी गलतियां कि हमने एक बुरा इमेज दिया हुआ है। अभी भी एज अ रिक्रूटर कुछ अर्सा हम भी पाकिस्तान से हायर नहीं करते रहे, और इवन बहुत सी कंपनी जो इस वक्त रिमोटली हायर कर रही हैं, आई थिंक आई वॉन्ट बी रॉन्ग टू से 90% पाकिस्तान से हायर नहीं करते जो हम्म। ग्लोबली हायर कर रही हम्म। हैं। Even the biggest example would be XAI. XAI is a company that's backed by Elon Musk. हम्म। They are not hiring from Pakistan. They are हम्म। hiring from India. They are hiring from Bangladesh. हम्म। They are even hiring from Nepal. लेकिन वो पाकिस्तानी क्यों नहीं हायर कर रहे? क्योंकि there is a market image that we have created over the time। डब्बा आपको आई थिंक आजकल एक आया हुआ है कौन सा डब्बे का, ठीक है, हम्म। डब्बे तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में हमसे ज्यादा है। जी। लेकिन वहां से एक अच्छी, और उन्होंने एक अपनी अच्छी इमेज क्रिएट की हुई है, उनकी हार्ड वर्किंग लेबर भी है। आई गेस सर वो बेसिकली अपने आप को मार्केट बहुत अच्छा अपने मीडिया के थ्रू एग्जैक्टली कर रहे हैं, एग्जैक्टली, और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत जबकि ज्यादा उनके भी अगर हम देखें तो अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो उनकी बहुत कम है, है। और एग्जैक्टली उनके हालात भी हमसे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली, लेकिन लेकिन वो अपने आप को मीडिया के थ्रू मार्केट बहुत अच्छा कर एग्जैक्टली रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल था कि स्किल्स आपके अंदर कौन सी ऐसी थी? इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट, व्हाट? यार आई थिंक इंग्लिश, अब बहुत सी कंपनीज इतनी मेच्योर हो गई हैं कि हम्म। उनको पता है कि इफ दे आर हायरिंग ग्लोबली, हर किसी की मादरी जुबान इंग्लिश नहीं है। बिल्कुल। सेकेंड थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। हमारी मादरी जुबान उर्दू है। हम्म। मैंने 3 साल के अंदर अपना एक्सेंट चेंज करके इंग्लिश नहीं किया, जो कि बहुत से लोग कर लेते हैं टू गेट हायर्ड, टू स्पेशली टू गेट सेल्स जॉब। they'll change their accent completely, British accent, US accent बना लेंगे। I did not work on that. I never wanted to change my accent. मेरे accent के अंदर कुछ देसी एक element आ रहा है, तो that actually I'm very proud to accept that, and I will retain that. I will never change that. ओके। ठीक है? तो जो लैंग्वेज का तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जहाँ तक रह गई, आई थिंक टू बी इन HR द बेस्ट, you have to you need to have soft skills। सॉफ्ट स्किल्स लाइक जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी बेहतर आपकी कम्युनिकेशन, जितनी बेहतर आपकी पीपल स्किल्स हैं, हम्म। जैसे मैं अक्सर आई जोक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। हाँ हम्म। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई, नॉट ओनली आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आर यू एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस दैट आर एप्लीकेबल टू मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट्स एज वेल। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग आए हुए हैं, डिफरेंट ख्यालात के लोग आए हुए हैं, क्या आप एक सर्टेन नतीजे पे पहुंच के ऐसे नतीजे पे पहुंच सकते हो जिससे कि किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो। ठीक है, ये बड़ी सीधी सिंपल सी चीज़ है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी भी है कि आजकल आपको ATS की नॉलेज होनी चाहिए।
आपकी ग्रीन हाउस की स्किल्स कैसी हैं, क्या आपको नोशन डॉक्यूमेंट्स बनाने आते हैं, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके साथ फेमिलियरिटी भी ज़रूरी है टू अच्छा लैंड द जॉब। सर, ये आप जो रिक्रूटमेंट आपने आज तक जितनी भी की, हुँ, आप कौन से सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इस्तेमाल करते थे? एक ये सवाल है, ठीक है, यानी लिंक्डइन कौन सा सॉफ्टवेयर, और एक 2-4 और सॉफ्टवेयर इंडीड वगैरह इस तरह के भी हैं। जी। ठीक है, दूसरा, ये जो स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं हम सीवी हर जगह फेंकते हैं, लेकिन जवाब आगे से कोई नहीं आता, तो सीवी में किस-किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन-सी ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं? इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा अब्दुल्ला, इसके अंदर जब आपका सीवी मेरे पास आएगा, हुँ, and I'm scanning through as a recruiter I'm scanning through 900 1000 CVs every day, let's suppose, हुँ, ठीक, या even for one position I'm scanning through 1000 CV, तो I won't have 5 to 10 seconds से ज़्यादा एक CV के ऊपर नज़र डालने के लिए। हुँ, तो your CV is your first selling pitch, ठीक है, वो आपका ट्रेलर है। मैं आपकी फिल्म तभी देखूंगा कि अगर आपका ट्रेलर अच्छा होगा, यू सेल मी ऑन दैट ट्रेलर, आई विल डेफिनेटली कंसिडर यू, एटलीस्ट आई पुट यू ऑन अ लिस्ट कि हाँ भाई ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ या शॉर्ट लिस्ट हुँ, करता हूँ। कुछ इस तरह होगा कि आपकी सीवी को एटलीस्ट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। सीवी आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग सीवीज में पैराग्राफ्स डालेंगे बहुत छोटी छोटी। बिल्कुल। आई एम अ वेरी पैशनेट प्रॉब्लम सॉल्वर who is very ethical in learning and ये वो। और अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया होता I है। have no interest in reading your paragraphs. आपकी एक पेज की सीवी भी होगी, 2 पेज की सीवी भी होगी। It's short, it's to the point. उसके अंदर फोटो हो ना हो, that doesn't matter. ठीक है? It should be just enough to convince me. It should be कि जिस रोल के लिए उन्होंने बेसिकली अप्लाई किया हुआ है। yeah, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप कह रहे हैं कि हाँ, भी मेरे पास बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हाँ, हाँ। इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, ओके। एग्जैक्टली आपकी सीवी को उस जॉब के ऊपर फोकस होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा कि अब अगर एक कैंडिडेट है, हुँ, मैं अगर एज अ कैंडिडेट अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे गया हूँ, मेरी 4 से 5 डिफरेंट स्किल्स हैं, उन 4 से 5 डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से 4 से 5 डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ही सीवी है। आई कैन हुँ, नॉट थ्रो दैट सीवी एवरीवेयर। ओके, आई शुड हैव आई विल से कि माई सेल्फ आई हैव 3 सीवीज, ओके, ठीक है, जो कि मेरी तीन जो मेरी अपनी जो मेरी स्किल्स हैं, जिसके अंदर एचआर है, जिसके अंदर ऑप्स है, जिसके अंदर एज एन एआई डाटा ट्रेनर है, मेरी 3 डिफरेंट सीवीज हैं। जिस भी रोल के लिए मैं अप्लाई करूंगा, आई विल यूज द स्पेसिफिक सीवी फॉर दैट रोल, क्योंकि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। तो यस, यू नीड टू हैव ऑल ऑफ ओके, देम। अच्छा, आपका एक और जो पॉइंट था जो मैं एड्रेस नहीं कर पाया कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हुँ, जिनको आप देख रहे हो। एज अ रिक्रूटर मेरे पास और मेरे ख्याल काफी सारे लोग ग्रीन हाउस ही यूज करते हैं हुँ, आपकी सीवी, एंड एज अ कैंडिडेट यू शुड नो कि वेयर योर सीवी गोज और किस प्रोसेस से होकर भी रिक्रूटर तक पहुंच रही है। आपको उस हिसाब से चीजें अपने माइंड में रख के फिर अप्लाई बिल्कुल, करना चाहिए। ग्रीन हाउस के अंदर आई, वहां से फिल्टर हुई, मैंने वहां से फिल्टर की, मैंने नेक्स्ट स्टेज पे भेजी। अगर मैंने आपको इवैल्यूएशन को असेसमेंट भेजनी है, मैं आपको उसके बाद भेजूंगा कि वंस योर सीवी इज क्लियर एंड पुश टू द नेक्स्ट स्टेज, देन आई विल गो फॉर एनी असेसमेंट दैट आई नीड टू सेंड यू। उसके बाद आएगा कि हमने आपका ओके, इंटरव्यू करना है नहीं करना। ओके। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू गो थ्रू। अच्छा सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज द पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन टू गेट अटेंशन ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा? इधर मैं एक बात को मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा ना डर रहे होते हैं अपने आप को ब्रांड करने में, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, जरा आप कभी जाके उनकी लिंक्डइन वगैरह पे डिस्क्रिप्शन देखें, तो वो तो ऐसे लगता है जैसे वो खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो आपका इस पे क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी हद तक बेहतर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखती पता चल रहा होता है कि ये तो फेक है, तो आपका इस पे क्या है? Yeah, I think LinkedIn is very important हम्म, nowadays. Um, it gives a very good impression, first impression अगर आपका LinkedIn strong है। By strong LinkedIn, I don't mean कि आप रोज एक AI generated post डाल रहे हो, हम्म, ठीक है। I think आपके अपने लिखे हुए 2 जुमले बेहतर हैं एक पूरे के पूरे AI के पैराग्राफ से। I am visiting your LinkedIn to see who you are। उसके अंदर आपने अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मेहरबानी करके आप वो फेसबुक पे रखें, आप लिंक्डइन के ऊपर उसको मत लेकर आए, जी, क्योंकि दैट्स नॉट द इट्स अ स्पेस वेयर यू वांट टू गेट हायर्ड एंड योर पॉलिटिकल ओपिनियंस शुड हम्म। नॉट बी बायस्ड एंड क्योंकि कुछ मामला कॉर्पोरेशंस में ऐसी बातें अच्छी लगती भी नहीं, और बहुत एग्जैक्टली सारी कॉर्पोरेशंस ने ऐसी पॉलिसी भी रखी हुई है कि पॉलिटिकल टॉक्स आर नॉट अलाउड, जस्ट लाइक स्कूल। yeah unethical, it's unethical, so you keep your opinions about politics to हम्म, yourself,
एटलीस्ट ओके, डोंट पोस्ट देम ऑन लिंक्डइन। ओके, और आप जो जिन वैल्यूज पे वर्क स्पेस के अंदर आप बिलीव करते हो, जिन वैल्यूज पे एज अ प्रोफेशनल आप बिलीव करते हो, आप उनको शेयर करो, आप बिल्कुल। उनके ऊपर पोस्ट करो। हुँ, रिसेंटली माय पोस्ट ऑन लिंक्डइन हैव बीन अबाउट क्रिप्टो करेंसी। I'm ओके, an HR professional. Why am I posting about cryptocurrency? That's something that I like to post about. It's not unethical to post about. ओके, It's a rising trend. मुझे उसके बारे में पोस्ट करना मुझे अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ। हुँ, कुछ अर्से बाद if I want to post about HR, I'll start posting on HR. हुँ, तो that's why अच्छा, और endorsements don't matter on LinkedIn. हुँ, आपने अगर किसी कंपनी में 4 लोगों के साथ काम किया है, 4 दोस्त दूसरे 4 दोस्तों को endorsements दे रहे हैं, it's easy to आप बड़ा इजीली उस चीज को रिकग्नाइज कर लेते हो कि एंडोर्समेंट आपके किसी दोस्त ने दी है या आपको वाकई किसी ने जेन्युइन एंडोर्समेंट दी हुई है। तो दे डोंट रियली मैटर। यू जस्ट नीड टू मेंशन योर स्कूल दैट यू वेंट टू, यू नीड टू मेंशन योर एक्सपीरियंस, हैव अ गुड डिस्क्रिप्शन। अबाउट के अंदर आपने 4 पैराग्राफ लंबा नहीं लिखना, 3-4 लाइनें अपने बारे में लिख दो कि आप क्या हो, क्या ओके। करते हो। अच्छा सर, ये जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिस तरह मेरा ब्रांड वॉर हुआ, उस पे आपने भी कमेंट किया जी था। जी, अगर इस तरह की कुछ डिबेट्स वगैरह की अचीवमेंट लिखी हो, तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अगेन दैट रिप्रेजेंट्स यू, ओके, योर पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप उसको बूस्ट करो। मैं तो कहता हूँ, मैं तो हमेशा आई एम अ फर्म बिलीवर, आपने 2 रुपए का काम किया, 10 रुपए का बेचो, ओके, क्योंकि आपने काम किया ना। आपने अगर एक इवेंट पे जाके बोला शायद सिर्फ 2 मिनट के लिए, लेकिन इफ यू ब्रांड दैट इन अ सर्टेन वे ऑन लिंक्डइन, तो लगेगा सारा शायद इवेंट ही आपने होस्ट किया। आई एम यस। नॉट सेइंग यू नीड टू मैनिपुलेट पीपल, लेकिन इट्स अबाउट ब्रांडिंग, आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। अच्छा सर, अब बेसिकली आजकल हम देखें तो एआई का दौर है, बिल्कुल एआई की तरफ सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोग डर गए हैं कि पता नहीं हमारी जॉब चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि हाँ भी, ये एआई जो है, अब ये एचआर का प्रोफ़ेशन किस तरह ये पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आई गेस कि ये जो एक है ना कि आपसे कोई बात कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस तरह की जजमेंट एआई कभी भी पास नहीं कर सकती। ठीक है? तो काइंडली इस पे ज़रा बताएँ, और कौन-सी ऐसी न्यू स्किल्स हैं जो अब ट्रेडिशनल एआई से शिफ्ट होके अब इमर्ज हो रही हैं? हाँ, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। और मेरी अपनी जॉब को भी, एक रिक्रूटर की जॉब को भी एआई से बहुत खतरा है। किस हुँ, तरह कि आपने शायद आजकल देखा हो, एआई इंटरव्यूअर भी आ चुके हैं। अच्छा, अच्छा। आपने अगर कहीं पे अप्लाई करना है, इवन इन माय ओन कंपनी, हुँ, प्रीवियसली लास्ट ईयर मैंने 300 लोगों का इंटरव्यू किया था। हुँ, वी वर हायरिंग फॉर अ हुँ। सर्टेन रोल, आई इंटरव्यूड 300 पीपल। स्माइल कर करके मेरे जबड़ों में दर्द आ गई थी अच्छा। उन सबको इंटरव्यू करके। लेकिन अब हमारा हमारा अपना एक एआई इंटरव्यूअर है ओके। जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह मार्केट में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोवन इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोवन इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर यूजिंग देयर एआई इंटरव्यूअर्स। हुँ, आपने अपनी सीवी डाली, द नेक्स्ट सेकंड यू गेट एन ईमेल, वो आपको बोलते हैं हमारा एआई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू करेगा। ओके, आपने अपना कैमरा खोला, एआई इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इट आस्क्स यू क्वेश्चन अबाउट योर सीवी, इट आस्क्स यू क्वेश्चन अबाउट द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, एंड इट कैन इवन बेंड द क्वेश्चंस, इट कैन आस्क क्वेश्चंस बेस्ड। अच्छा, इसके अंदर चलें, अब ये बात शुरू हो ही गई है, आई विल गिव अ टिप हाउ टू स्टीर द कन्वर्सेशन एआई के साथ। इट्स वेरी इजी टू स्टीर द कन्वर्सेशन विद एआई। आपने आप जो भी चाहते हो कि उसका अगला सवाल वो हो ना, जस्ट टॉक अबाउट दैट। ओके, इट ओके। आस्क्स यू अ क्वेश्चन ये आप कि एआई इंटरव्यूअर की बात हाँ, कर मैं रहे हैं। आपको ओके, एआई ओके, इंटरव्यू, ये ओके। इवन अगर आप एक रिक्रूटर के साथ भी इंटरव्यू कर रहे हो, यू कैन स्टीर द कन्वर्सेशन योरसेल्फ। मैंने आपसे सवाल पूछा, अब्दुल्ला आप क्या काम करते हैं? आपने मुझे बताया, सर मैं ये काम करता हूँ और मुझे ये काम करने का शौक है। मुझे क्विकबुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, मेरा ये इंटरेस्ट है। नेचुरली 70-80% ऑफ द टाइम मेरा अगला क्वेश्चन उससे इंटरेस्ट के बारे में ही होगा। आई विल आस्क क्विकबुक्स के रिलेटेड होगा। यू एग्जैक्टली। ओके। तो दैट्स हाउ यू स्टीर द कन्वर्सेशन इवन विद द एआई। और एआई अगर देखिए, आप यहाँ पे मेरे से सवाल करते हैं कि हाँ हाँ, भाई, क्विकबुक्स के अलावा कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो मैं आपको ये दोबारा क्विकबुक्स की साइड पे कुछ ऐसे कह के ले आओ कि क्विकबुक्स के ना एग्जैक्टली, यही एडवांटेज है। सो एग्जैक्टली, यू विल टेंड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट क्विकबुक्स। exactly. You make the interviewer ask you the questions ओके, that ओके, ओके, you want them to ask. ओके। In the case of AI, you want it to ask कि आप उसको बात ही वो करो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज आ गई है कि हुँ, एआई इंटरव्यूज के दरमियान या इवन इन रियल लाइफ इंटरव्यूज, यू नीड टू हैव एग्जांपल्स। ओके, You always need to have examples, even if it's an AI interview या फिर you are interviewing live with a recruiter,
आपके पास हर सवाल के रेलेवेंट एक एग्जांपल होनी चाहिए। ओके, और आपके पास एग्जांपल्स कब आएंगे? एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई काम ही नहीं किया, बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटी का पढ़ा निकला है, ग्रेजुएट हो गया, उसके पास किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम की, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया कि अब्दुल्ला ये एक सिचुएशन है ऑफिस के अंदर, यू हैव 24 आवर्स टू सॉल्व इट, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बजाय इसके कि आप एक हाइपोथेटिकल जवाब बनाकर मुझे दे रहे हो, आप बोलो जी मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन आई थी, मैंने ओके। 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो इस तरह मैंने ये सॉल्व की थी, तो आई विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। ओके। अच्छा, मैंने बात की थी, क्या ये ह्यूमन जजमेंट कर सकती है? नहीं, बिल्कुल अभी भी नहीं शायद कर सकते। स्टेज पे नहीं है। I totally, if it's just my opinion, I totally disagree with that. मैं तो AI हुँ, interviews के भी बहुत against हूँ। AI cannot judge a person. It can ओके। give you a slight bit of an idea, क्योंकि obviously the meetings are recorded even with the AI. हुँ, वो meetings record होती हैं, पीछे किसी recruiter के पास जाती हैं, they can evaluate that obviously. लेकिन I think it's very easy to manipulate an AI. आपने उसकी तरफ keywords फेंकने, ओके, jargons फेंकने। मेरे से एआई इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपने रिक्रूटिंग में क्या सीखा, मैं उसको बता रहा हूँ यार मैंने ग्रीन हाउस इस्तेमाल किया, मैंने नोशन इस्तेमाल किया, मैंने स्लैक इस्तेमाल किया, मेरे पास इंडीड का एक्सपीरियंस है, लिंक्डइन का एक्सपीरियंस है, मैंने ग्लासडोर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वो टेस्ट गरिल्ला 4-5 सॉफ्टवेयर्स के नाम डाल दिए, उसका ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम ऐसा सेट है, उसने कहना है कि इसने ये कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, इसका जवाब ब्रिलियंट है, ओके। ऑल्दो इवन इफ माई आंसर डज नॉट मेक एनी सेंस। या फिर वो बिल्कुल एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आपके आंसर ले जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, बेसिकली हमारे जो आजकल प्रोफ़ेसर हैं शिराज़ अहमद, उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। वो आजकल एआई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, उनकी स्किल्स वगैरह इस तरह की रखते हैं। वो कह रहे हैं कि एआई जो है बेशक आपकी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है, अब आपका वर्कर से जो है ना रोल हट के आपका डायरेक्टर का रोल बन गया है। आप एआई को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, यानी कंट्रोल आप अपने पास ही रखें। एआई आपसे ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख लेता है, ज़्यादा अच्छा, लेकिन आप डायरेक्टर का रोल करें। आप इस बात से यानी कितना करते हैं कि कौन सी ऐसी न्यू स्किल्स हैं जो इस एआई की वजह से बाहर आ रही हैं, या कौन से ऐसे न्यू हैं प्रोफेशंस? Abdullah, I would say कि AI was built to assist. ओके, आपने हमेशा देखा होगा कि इवन अगर हम चैट जीपीटी के एक एग्जांपल लें, तो दे ब्रांड इट एज एन असिस्टेंट। ओके, ठीक है, इट्स देयर टू असिस्ट, इट्स नॉट देयर टू स्टील योर रोल, यू हुँ, कैन यूज इट टू इम्प्रूव whatever you are doing. ओके, Prompt, reprompt, and then reprompt again, come with the best version of it. आप कभी भी AI से एक सीधा सवाल करके उससे बेस्ट आंसर तो एक्सपेक्ट कर ही इसको नहीं मैं सकते। कंक्लूड कर सकता हूँ ये कह के कि जो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ आ गया। यप यप यप। ओके, सर आपके साथ हम एक फाइनल गेम खेलना चाहेंगे। हाँ जी। शायद ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं हाँ जी। एचआर के बारे में, या फिर शायद ये सच हैं। हाँ जी। ये मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। ओके, एचआर इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। False. अच्छा जी। एचआर पॉलिसीज़ आर ऑफन डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल। I would say I will be neutral on this one. नहीं, नहीं, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। Uh, I would say it's false. फॉल्स? Yeah, it's false. अच्छा, आपके लिए शायद फॉल्स हो, आपको लगता है मार्केट के लिए भी ये फॉल्स है। I think any company जिसकी अपनी एक पर्सनल फिलोसफी है, वो कभी भी अपनी फिलोसफीज गूगल से डाउनलोड नहीं करेंगे। Okay. They can build up their own documents. Okay. HR only matters in large corporation, not in startup or small businesses. I mean, the more the people, the more there is a need of HR. 4 लोगों की कंपनी होगी तो you don't need an Okay, need an okay. HR. Yeah. Once the hiring is done, HR real work is over until the next vacancy. No, that's where the HR work actually starts. So I think it's false. Okay. HR sometimes hire people just because they want to fulfill a vacancy to show their performance. I would say that depends on the deadlines that we have put. Okay. तो true है ये। हाँ, true भी हो कह सकते हैं। अच्छा, organizing the CEO's birthday party is officially a part of HR's job description. That's very controversial. I think हमें काफी बर्थडे पार्टीज खुद भी ऑर्गेनाइज की Okay, okay. आप जवाब नहीं देना चाह रहे, ठीक है। HR exists mainly to plan annual dinners and office celebrations. No, false. It is in the job description of HR to snitch about their colleagues and Yes, subordinates. absolutely, that's true. Yeah, that's Okay, people join HR because they aren't good with numbers and analytics. ये मैंने शायद accountant वाली बात कर दी। हाँ, that's true for me at least. Okay, I'll say that's true okay. for me. Small companies don't really need an HR department. या guess I guess हमने repeat कहा, हो गया। हाँ। मैंने भी chat GPT का इस्तेमाल किया था। Okay जी, thank you so much for joining us, Thank Mr. you. Hamad Raza. It's been an honor hosting you. Thank you.